Hello, everyone, and welcome to my session on Let's Crack CBSE 9th and 10th. This channel is being run by Unacademy, that is India's largest learning platform. So, Unacademy is currently helping 9th and 10th CBSE students to crack their exams, for which they are providing them with top educators. अब top educators से मेरा मतलब है कि ऐसे educators जो एक बड़ी ही strict procedure से recruit हुए हैं, जिन्हें बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे लेक्चर्स के राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर आके पढ़ा सकते हैं। कोई भी आके पढ़ाने लग जाए ऐसा यहाँ पर नहीं होता। तो दे आर वेरी केयरफुली सिलेक्टेड एजुकेटर्स। सो नेचुरली जब एजुकेटर्स इतने केयरफुली सिलेक्टेड हैं, तो वो जो आपको कंटेंट देते हैं, वो जो चीज़ आपको पढ़ाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ अटमोस्ट टॉप क्वालिटी। तो ये जो एजुकेटर्स और जो क्वालिटी कंटेंट, इसका कॉम्बिनेशन is sure to give you a great learning experience and amazing learning experience in my words. So Unacademy आपको देता है YouTube sessions जो हमारे अभी चल रहे हैं। YouTube sessions के साथ साथ it is giving you free classes called special classes which are available on the Unacademy website. I also take special classes. You will find the link in the description to my profile. And I take grammar, I take literature, and I take creative writing as well. So I'm there most days or regularly on at 11:30 a.m. You'll find my profile in the description. Follow that so that you get notifications about my sessions. And another vertical that Unacademy is providing to students is the plus subscription. अब ये plus subscription क्या है, ये हम कुछ ही देर में देखते हैं। जो लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं, मेरा नाम है स्नेहा फैजपुरकर। आप ये नाम यूट्यूब पर सर्च करो, यू विल फाइंड मोर ऑफ माय सेशंस ऑन दिस चैनल। लिटरेचर सेशंस हैं, ग्रामर पूरा पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज़ है, अदर ग्रामर टॉपिक्स, मॉडल्स एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो आपके सिलेबस में अभी है। Then you will find a strategy video on how to score 90% plus in your exams. So just go and check out those videos. It will be really beneficial for you. Fine. So coming back to who am I? So I am an English educator on Unacademy. I teach 10 CBSE students. Otherwise, I teach students and train students for all the English exams that are there, like competitive exams, banking exams, other government exams, or exams that require, that are required for students to go abroad to study or to settle down. So like IELTS. So I train students for all the English exams, and that is what I love doing. It's my passion. So today we are going to learn about the chapter The Necklace. Like I said about Unacademy, that it is India's largest learning platform, and it provides you with YouTube sessions, with your special classes, and with the plus subscription. Right now, plus subscriptions advantages, the first advantage is that you get daily live classes as in your school or your college or your tuitions. You can chat with your educator, you can engage in discussions with them, and you can answer polls. If they conduct any multiple choice questions, if they give you any multiple choice questions, you can quickly answer and you can understand in real time if your answer is correct or not. Live tests and quizzes. Live tests and quizzes give you two advantages, is that it gives you an idea of the types of questions that are coming, and that the time that you're requiring to complete the paper. So it gives you time management idea also, and an idea of the questions as well. Structured courses is a great advantage because you get PDF notes by your educators, and it is according to your revised paper pattern and your updated syllabus as well. एक ही कोर्स चला रहे हैं ऐसा नहीं होता है. Coming to the biggest advantage is the अनलिमिटेड एक्सेस. मान लो आपकी कोई क्लास अगर मिस हो गई है, तो फ्रेंड किससे जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है, यार बता दे क्या हुआ था, क्या पढ़ाया, मुझे तो नहीं पता, मैं मिस हो गई. नो नीड, ये आपके फ़ोन में ही आपका कोर्स है.
आप जब चाहो इसको एक्सेस कर सकते हो, जितनी बार चाहो, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस कहीं से भी देखो, कितनी भी बार देखो. So you have an advantage of accessing this anytime, from anywhere, and any number of times. Right? It literally is in your hands. Another advantage is कि ये जो नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये सारे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं. तो you get a chance to learn from these experts. Right? You get a chance to learn from these experts. और साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाएगा. आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, ऐसे सारे मेन सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे. स्टूडेंट्स की जनरली कंप्लेंट रहती है कि लैंग्वेजेस नहीं पढ़ाए जाते, ज़्यादा मिलते नहीं है लोग जो लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं. इसको करना कैसे है, ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर ये ऐप अवेलेबल है. ऐप का नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. इसको सबसे पहले जाओ और डाउनलोड कर लो, एंड डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करके ये गेट सब्सक्रिप्शन जो है ये कर लो. राइट? एंड यू कैन अनलॉक योर अनलिमिटेड एक्सेस to your course. Right? We are also on Telegram. Telegram भी आप डाउनलोड करिए, iOS एंड्रॉयड दोनों पे है. और क्वेस्ट 10th CBSC, इसको आप ज्वाइन कर लो. आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशंस. सारे एजुकेटर्स नोटिफिकेशंस पोस्ट करते हैं इसमें. आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे अबाउट सेशंस, अबाउट वीडियोस, and about quiz also that is being conducted. तो आपसे ये कुछ भी छूट नहीं जाएगा. You get the maximum advantage. Right? Coming to पैसा कितना लगने वाला है मैम, तो yes, now the minimum that you must go for is the 6-month subscription, because अभी 10th ख़त्म भी हो जाएगा तो 11th 12th का सब्सक्रिप्शन भी इस पैकेज में रहेगा. You can also go for 12 months, 2 years, 3 years. डिपेंड करता है, आप ड्यूरेशन बढ़ाते हो तो आपका डिस्काउंट भी बढ़ता है. जैसे 6 मंथ्स में 33% ऑफ है, 12 मंथ्स में 50% ऑफ है, सीधा सिर्फ आधा ही पैसा भरना है. 2 साल के लिए 58% कम हो जाएगा, और 3 साल के लिए जाओगे तो सबसे ज़्यादा पैसा बचा लोगे, दैट इज 64% बचा लोगे. इसके साथ साथ एस लाइव ये जो कोड है बड़ा ही आसान है. एस लाइव ये जो कोड है इसको याद रखो. अगर प्रोमो कोड में चेकआउट के टाइम पे पेमेंट से पहले इसे डालते हो तो आपको एडिशनली 10% ऑफ हो जाएगा. एडिशनल 10% ऑफ हो जाएगा ये एस लाइव कोड यूज करने से. अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, द नेकलेस. अब ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं. गाय डे मॉपसॉन, who lived from 5th of August 1850 to 6th of July 1893. He was a French writer, remembered as a master of the short story form, ज़्यादा से ज़्यादा short stories ही लिखते थे, and as a representative of the naturalist school of writers. ये क्या होते हैं? Who depicted human lives and destinies and social forces in disillusioned and often pessimistic terms. He wrote some 300 short stories, 6 novels, 3 travel books, and 1 volume of verse. That is an immense volume of work that he has already done. Starting with the story. So this is a French story. I will be telling you about the pronunciations. So this is not Matilda, it is Mathilde. Loisel. She was a pretty young lady who was born into a middle-class family who worked as clerks. So Mathilde Loisel जो थी एक बड़ी ही मतलब सुंदर सी यंग लेडी थी
जो एक मिडिल क्लास घर में पली बड़ी, जहाँ पर सब क्लर्क्स के पोजीशन पर काम करते थे, सो दे वर नॉट वेरी रिच, कोई बहुत औदा नहीं था जहाँ पर काम कर रहे थे, दे वर प्रीटी सिंपल मिडिल क्लास पीपल. Her family did not have any means to arrange dowry for her marriage. तो for to get her married to somebody very big and rich, they had to give dowry. तो ये custom जो है ये काफ़ी अलग अलग कल्चर्स में प्रेजेंट था, नॉट जस्ट इन इंडिया. फाइन. सो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डाउरी दे सके ना. मटिल्डे के पास कोई चांस था कि वो किसी रिच लड़के के प्यार में पड़े या कोई रिच लड़का उसके प्यार में पड़े एंड देन ही आस्क फॉर हर हैंड इन मैरिज. तो ऐसा कोई चांस नहीं था. शी डिड नॉट हैव एनी अदर मीन्स बाय विच शी कुड बिफ्रेंड अ रिच मैन टू बी लव्ड और मैरिड टू हिम. इसलिए ड्यू टू दीज सर्कमस्टांसेस उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा. शी हैड टू मैरी अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. सो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क काम करता था एंड शी हैड टू मैरी दैट पर्सन बिकॉज डाउरी भी नहीं थी एंड शी डिड नॉट मीट एनी अदर मैन ऑल्सो. सो इस शादी से शी वॉज अनहैप्पी. ये हमें पहले ही पता चल जाता है कि देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिविटी गोइंग ऑन. तो वो अपनी शादी से खुश नहीं है. She used to think that destiny was unfair to her. जो किस्मत है वो उसके साथ unfair है and that she deserved much better. ये उसको जो कुछ भी मिला है उससे ज़्यादा वो deserve करती है, उससे अच्छा वो deserve करती है. She used to get angry and was tortured by the condition of her apartment. तो वो जिस जगह पर रह रही थी, जो कंडीशन में रह रही थी, उससे वो बड़ी ही परेशान थी, बड़ी इरिटेटेड रहती थी बिकॉज उसको वैसा नहीं रहना था. The dirty walls and the torn furniture used to irritate her. So maybe they didn't have that much money कि वो walls को पेंट करवा सके और furniture को रिपेयर करवा सके, बट वो सब कंडीशन उसको बड़ा ही एंग्री बना रही थी, बड़ा ही नेगेटिव और बना रही थी. She used to think about elegant dinners being served in marvelous dishes when her husband used to praise the homemade food served in a simple dish. वो जब भी हस्बैंड को खाना परोसती थी सिंपल सी डिशेस में, तो वो इमेजिन, और वो तारीफ़ करता था तो वो इमेजिन करती थी कि ऐसा बहुत सारा एलैबोरेट मेन्यू हो, बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी हो मेरे पास. तो ये सारा उसके दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहता था. She did not have fancy jewels or good dresses. So basically, it is all to tell you that the financial condition was not very great, nor was the living condition great. She had a school friend whom she did not like to meet as she was a rich lady. So इसकी friend थी एक जो अमीर थी, पर इसको उससे मिलना पसंद नहीं था. उसको मिलना पसंद था रिच फ्रेंड को या नहीं वो नहीं पता हमें, बट शी डिड नॉट लाइक टू मीट द रिच फ्रेंड. क्यों? बिकॉज उसको मिलने के बाद शी यूज टू क्राई फॉर डेज टुगेदर लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ अ लाइफ. उसकी कंडीशन देख के अपनी कंडीशन कंपेयर करके वो काफ़ी दिनों तक रोती रहती थी जब उससे मिलने जाती थी. अब एक दिन क्या हुआ, हर हस्बैंड केम बैक होम फ्रॉम वर्क इन अ हैप्पी मूड. एक बड़े ही खुश मूड में उसका हस्बैंड घर आया ऑफिस से. उसके हाथ में था एक envelope, holding an envelope in his hand. He informed her that the envelope was for her and asked her to open it. He said, ये जो लेटर है ये तुम्हारे लिए आया है, चलो अब इसको खोल के पढ़ो. She quickly pulled out the printed card. So whenever we get letters or nowadays we get parcels, so we are already excited to open them. तो तब वैसे ही letters के लिए भी होता था. She quickly pulled out the printed card as she was excited to know what it was about. It was an invitation from the minister. The couple had been invited to a dinner party at the house of the Minister of Public Instruction. So, जो मिनिस्टर थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर, उन्होंने इन दोनों को अपनी एक डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया था. She was supposed to be delighted as her husband expected. तो जब किसी इतनी ग्रैंड पार्टी में इतना बड़ा आदमी आपको अगर इनवाइट करता है, आपके पास इनविटेशन है, तो नेचुरली आप हैप्पी होंगे, आप एक्साइटेड होंगे. सेम उसके हस्बैंड ने उससे एक्सपेक्ट किया कि जब मैं अपनी वाइफ को ये इनविटेशन दिखाऊंगा वो बहुत खुश हो जाएगी. बट शी गॉट रियली एंग्री. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, खुश होना तो दूर, वो गुस्सा हो गई. एंड शी थ्रू द कार्ड वाइल मर्मरिंग समथिंग. सो कुछ बड़बड़ करते हुए उसने वो कार्ड
फेंक भी दिया, राइट। खुशी तो हुई नहीं, उल्टा गुस्सा हो गई और कार्ड भी फेंक दिया। उसने अपने हस्बैंड से पूछा व्हाट डिड ही वांट टू डू विद द कार्ड, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं ये कार्ड के साथ क्या करूं। So he replied that he had thought she would be happy as she never went out. तो उसने बोला कि मुझे लगा तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, तो मुझे लगा कि ये इनविटेशन देख के तुम खुश हो जाओगी कि देयर विल बी अ चेंज, हमें इतनी बड़ी पार्टी में जाना है, हमें बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, तो आई थॉट यू विल बी हैप्पी। ज़्यादा लोगों को इनविटेशन नहीं मिला है, सो नेचुरली इट वॉज समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। He replied that he had thought she would be happy as she never went out, and this was a rare occasion to which not many employees were invited. तो इतने कम एम्प्लॉयज में से इसको ये एक था जिसको इनविटेशन मिला था। He also told her that she would be meeting a lot of people from his office there, कि तुम मेरे कलीग से भी मिल पाओगे, इतने सारे लोग रहेंगे। Matilda asked him what could she wear to such a grand party, कि ठीक है लेकिन मैं ये पार्टी में इतनी बड़ी इतनी ग्रैंड पार्टी में मैं पहन के क्या जाऊं। He stammered as he had not thought of that. So उसका इस डायरेक्शन में दिमाग चला ही नहीं कि पार्टी के लिए अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, राइट। ही वॉज जस्ट हैप्पी कि मुझे इनविटेशन और मुझे मेरी वाइफ को इनविटेशन मिल गया है, राइट। स्टैमरिंग का मतलब है हकलाना या रुक रुक के बात करना। He first asked her to wear the dress that she wore when they went out for movies. तो उसने पहले बोला हम मूवीज देखने जाते थे, जब तुम वो वाला ड्रेस पहनती थी वही पहन लो। But then as she was weeping, वो फिर भी रोती रही, he asked her about the matter. उसने बोला चलो बताओ क्या हुआ है exactly. She wiped her tears from her wet cheeks. रोना बंद किया and शांति से बताया कि वो ये पार्टी में नहीं आ सकती, that she could not be a part of such a grand affair and that she should give away the card to some other colleague whose wife was better than her. उसने बोला कि मैं ये पार्टी में नहीं आ सकती, इतनी ग्रैंड पार्टी का हिस्सा मैं नहीं हो सकती, एक काम करो तुम्हारे ऐसे किसी दोस्त को दे दो जिसके पास इनविटेशन नहीं है पहले से और जिसकी बीवी मुझसे अच्छी हो, मुझसे अच्छी कंडीशन में हो, उसको तुम ये इनविटेशन जाके दे दो क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं वो ग्रैंड पार्टी में जा सकूं। He felt bad for his wife as he saw her crying. तो उसको नेचुरली बुरा लगा यार वाइफ इतना रो रही है। एंड आस्क्ड हर द कॉस्ट ऑफ अ सिंपल ड्रेस, उसने बोला कि एक सिंपल सी ड्रेस की मुझे बता दो कितने तक आएगी। ऐसी ड्रेस से उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ पार्टी के लिए ड्रेस ले लो, a simple dress that could be worn by her on other occasions as well. So ऐसी ड्रेस लो, सिंपल ड्रेस लो जो पार्टी में भी पहनी जा सके और बाहर कहीं और भी पहनी जा सके। सिर्फ पार्टी के लिए एक ड्रेस पे खर्चा करने वाला आदमी वो नहीं था, राइट। तो उस ड्रेस उतनी ग्रैंड पार्टी के लिए उतनी फैंसी ड्रेस अगर वो खरीदती तो वो उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से तो इतनी पार्टीज नहीं होती थी, तो वो और कहाँ पहनती। तो वो पैसे सिर्फ एक ड्रेस पे खर्चा नहीं करना चाहता था, वसूल कर लेते हैं पैसे, ऐसी कोई ड्रेस लो जो बाकी जगह भी काम आ जाए। ऐसा नहीं कि एक पार्टी में पहन ली और फिर बंद करके कबर्ड में रखी रही तो सालों साल वहीं पड़ी है। सो ही थॉट ऑफ कि मनी का बेस्ट यूज भी कैसे होना चाहिए। She thought of an amount that would neither be refused by him nor scare the poor clerk. तो उसने थोड़ा सोचा कि मैं कितने पैसे बोलूं, ऐसा कुछ बोलना है मुझे जो ये मना भी ना करे और डरे भी नहीं, राइट। क्योंकि पैसे तो चाहिए हैं, मना तो नहीं कर सकती, तो इतना तो एग्जॉर्बिटेंट ऐसा कुछ नहीं बोल सकती जिसके वजह से वो मना कर दे कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं दे नहीं सकता। तो वो बोलती है कि वो मैनेज कर लेगी 400 फ्रांक्स में। Monsieur, M is for Monsieur. Monsieur Lozel was reluctant, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट किया 400 फ्रांक्स के लिए, as he had saved only that much money, उसने उतना ही सेव किया था। क्यों? उसको गन खरीदनी थी so that he could join the hunting parties next summer with his friends. तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको हंटिंग पार्टीज करनी थी आने वाले समर सीजन में, जिसके लिए उसको गन खरीदनी थी। उसने उतने ही पैसे अपनी गन के लिए सेव करके रखे थे, इसलिए वो थोड़ा सा रिलक्टेंट हो रहा था वो पैसे उसको देने के लिए।
He told his wife that he would give her the money. तो वो अग्री कर लिया अपनी वाइफ की खुशी के लिए, उसने सैक्रिफाइस तो कर लिया कि चलो गन की जगह तुम ड्रेस ले लो. एंड आस्क्ड हर टू बाय अ गुड ड्रेस, चलो जाके अपनी अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस अब तुम खरीद लो. द डे वॉज अप्रोचिंग, तो पार्टी का दिन तो जल्द आ रहा था, करीब आ रहा था. एंड मटिल्डे वॉज स्टिल नॉट फाइन, फिर भी वो तकलीफ में है, फिर भी सैड है. प्रॉब्लम क्या थी? इवन दो हर ड्रेस वॉज ऑलमोस्ट रेडी, अब पैसे भी दे दिए, सैक्रिफाइस कर दिया, जितने मांगे उतने पैसे दे दिए, ड्रेस भी बन गई है, फिर क्या दिक्कत है, फिर क्यों तुम ठीक नहीं हो? तो उसके हस्बैंड ने उसको दोबारा पूछा एक दिन, वाई शी हैड बीन एक्टिंग स्ट्रेंजली फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कि तुम इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही हो, जब सब तुम्हारे हिसाब से हुआ है तो अब क्या प्रॉब्लम है? मटिल्डे रिप्लाइड दैट ऑल्दो शी हैड द ड्रेस, मेरे पास ड्रेस तो है, बट शी डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी और एनीथिंग एल्स टू मेक हर सेल्फ लुक इवन मोर अट्रैक्टिव. तो अब मेरे पास ड्रेस तो है, लेकिन अब ड्रेस पर मैं क्या पहनूं? मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं सिर्फ ड्रेस पहनकर कैसे जाऊं? विदाउट एनी ज्वेलरी शी वुड लुक लाइक अ पुअर पर्सन इन सच अ बिग पार्टी. तो इतनी अच्छी ड्रेस पे अगर मैं कोई ज्वेलरी नहीं पहनूंगी तो मैं वैसे ही गरीब दिखूंगी इतने अमीर लोगों के बीच में, इतने ग्रैंड पार्टी में. शी अगेन सेड कि शी वुड प्रेफर नॉट गोइंग टू द पार्टी, फिर बोलती है कि हम नहीं जाते हैं ये पार्टी में. तो उसका हस्बैंड फिर सजेस्ट करता है दैट शी कुड वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, अच्छे दिखते हैं नेचुरल फ्लावर्स पहन लो. तो शी रिप्लाइड दैट शी कुड नॉट एज इट लुक्ड रियली चीप इन अ पार्टी ऑफ रिच पीपल, अमीर लोगों की पार्टी में नेचुरल फ्लावर्स पहन के जाऊंगी तो बड़ा ही चीप लगेगा. राइट, दिस इज व्हाट द वाइफ हैज टू से मटिल्डे. फिर उसका हस्बैंड उसको एक सजेशन देता है, राइट, दैट शी कुड गो टू हर फ्रेंड, MME is for Madame Forestier, एंड आस्क हर टू लैंड सम ज्वेलरी. तो वो जो रिच फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड बोली थी, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है. तो उसका हस्बैंड सजेशन देता है, चलो नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी नहीं पहननी तुमको, चीप दिखती है, तो एक काम करो, अपनी दोस्त के पास जाओ और उससे थोड़े दिन के लिए एक कोई ज्वेलरी मांग के लाओ. राइट, एंड आस्क हर टू लैंड सम ज्वेलरी. मटिल्डे बिकेम हैप्पी अगेन एज शी हर्ड द आइडिया, उसको आइडिया अच्छी लगी कि हाँ दोस्त के पास जा सकती हूँ. शी वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर्स हाउस द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जाती है एंड अपनी प्रॉब्लम उसको बताती है एंड सेड दैट शी वाज स्ट्रेस्ड अबाउट द पार्टी एंड द ज्वेलरी. मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, अपने कबर्ड के पास जाती हैं और अपना ज्वेल बॉक्स बाहर लेकर आती हैं एंड आस्क्ड हर टू चूज फॉर हरसेल्फ व्हाटएवर शी वांटेड. तो बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए इसमें से तुम चूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तुम्हें लगता है, जो तुम्हें पसंद आता है वो ले लो. शी फर्स्ट सॉ सम ब्रेसलेट्स, पहले ब्रेसलेट्स देखती है, देन सम पर्ल कॉलर्स आर थिंग्स यू वेयर हियर, कॉलर्स, एंड देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल्स. सो एक गोल्ड और जूल्स का भी क्रॉस उसको वहां पर दिखता है. शी वॉज नॉट एबल टू डिसाइड वॉट टू टेक, अब इतना सब देख लिया, उसमें से वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मुझे क्या लेना है. एंड वॉट टू लीव, तो मैं क्या छोड़ूं और मैं क्या लेकर जाऊं, ये चॉइस जो है ये मटिल्डे कर नहीं पा रही थी. सो शी आस्क्ड मैडम फॉरेस्टियर इफ शी हैड एनीथिंग एल्स दैट शी कुड वेयर, बोल रही है कि इसमें से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं क्या लेके जाऊं, तुम्हारे पास कुछ और है क्या? तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती हैं कि शी कुड हरसेल्फ टेक अ लुक, तुम खुद आओ और तुम देख लो कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है. शी देन सॉ अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस केप्ट इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, बड़ा ही शानदार सा डायमंड नेकलेस दिखता है उसको जो एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में रखा हुआ होता है. शी टुक इट आउट विथ हर ट्रेम्बलिंग हैंड्स एंड वोर इट. तो इतनी महंगी चीज, इतना अमेजिंग, इतना ग्रैंड डायमंड नेकलेस देखने के बाद, जिसकी कभी आदत नहीं थी, नेचुरली कभी टच नहीं किया था, उसको टच करते समय उसके हाथ जो है कांपने लग गए. राइट, और वो कांपते हुए हाथों से ही उसने वो निकाला और पहन के देखा. शी वॉज ओवरजॉयड विद द नेकलेस एज इट लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल, तो पहन के बड़ी सुंदर दिख रही थी, बहुत सूट कर रहा था उसको, तो वो नेचुरली बहुत खुश हो गई. शी आस्क्ड हर फ्रेंड इफ शी कुड लेंड हर द डायमंड नेकलेस, तो उसने पूछा कि क्या तुम मुझे ये लेंड कर सकती हो,
लेंडिंग इज टू गिव समथिंग टू समवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो उससे वापस ले लेना, सॉर्ट ऑफ लाइक उधार। ओके, इट्स नॉट गिफ्टिंग, परमानेंटली किसी को देना नहीं होता, टेम्पररीली जो वापस भी आ जाएगा। तो बोलती है कि मुझे ये डायमंड नेकलेस जो है ये तुम लेंड कर सकती हो क्या? तो मैडम फॉरेस्टियर कंसेंटेड टू इट। कंसेंटेड मतलब उन्होंने हाँ बोला। कंसेंट इज टू से यस और टू अग्री टू समथिंग। सो मैडम फॉरेस्टियर सेड यस आई अग्री टू दिस, इसको तुम ले जाओ। Matilde hugged her friend with affection and left for her house. So she was naturally happy कि उसकी फ्रेंड ने उसकी बात मानी, उसको वो लैंड करने के लिए अग्री हो गई, तो बड़े ही प्यार से she hugged her friend और अपने घर के लिए निकल गई। अब आता है पार्टी का दिन। The day of the party arrived and Madame Loisel, मतलब Mathilde, was appreciated as she was the prettiest, मोस्ट एलिगेंट एंड ग्रेशियस ऑफ ऑल। तो पार्टी में सब लोग मथिल्डे की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे सुंदर दिख रही है, सबसे एलिगेंट दिख रही है, राइट। शी वॉज वेरी हैप्पी। नेचुरली इतनी तारीफ मिलने के बाद, इतने बड़े बड़े लोगों से तारीफ मिलने के बाद शी वॉज वेरी हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत खुश थी। एज ऑल द मैन वर नोटिसिंग हर, तो सारे लोग उसको ही नोटिस कर रहे थे। शी वॉज गेटिंग ऑल द अटेंशन, तो वो बड़ी खुश थी। She was full of enthusiasm and pleasure as she was very happy with all the attention she had gained. So everybody is happy with attention when they gain it. So same way Matilde was also very happy with the attention that she was gaining. Despite his best efforts, he was only able, I'm so sorry, this is a wrong slide that has come. Yes. The couple left the party at 4 o'clock in the morning. The couple left the party at 4 o'clock in the morning. Monsieur Loisel had already slept at 12 o'clock in one of the halls with 3 other men whose wives were also enjoying the party. तो ये लोग पार्टी से सुबह 4 बजे निकले, बट जो हस्बैंड थे मोजोर लॉजल, वो 12 बजे ही एक हॉल में सो गए थे और 3 लोग उनके साथ सोए थे, लेकिन इन सब की वाइफ्स जो हैं वो पार्टी एंजॉय कर रही थी। Monsieur Loisel threw the wrap around her shoulders as they were about to leave. एक shawl sort of a thing he wrapped around her shoulders. The elegance of the party dress was getting ruined by the rope. तो इतनी अच्छी जो ड्रेस उसने पहनी है, जो ज्वेलरी है, वो उस शॉल के वजह से खराब हो रही है, तो क्योंकि वो शॉल उतनी अच्छी नहीं थी। She wanted to leave the party quickly because she did not want the rich ladies who had wrapped themselves in rich furs to see her in a cheap wrap. तो बाहर निकल के जो उसका रैप था वो बड़ा ही चीप लग रहा था और बाकी लोगों ने फर पहना हुआ था, तो उसको लगा कि चलो यहाँ से जल्दी से निकला जाए क्योंकि बाकी लोग ये गंदा सा गरीब सा रैप देखेंगे तो उनको लगेगा कि बड़ी ही गरीब हूँ, राइट। उसको नहीं चाहिए था कि वो लेडीज ये देखे। This was because she had portrayed herself as a rich lady. तो उस मैडम ने वहाँ पर खुद को एक बड़ी ही अमीर लेडी करके वहाँ पर खुद को पोर्ट्रे किया था, राइट। इतना बड़ा डायमंड नेकलेस पहन के she portrayed herself to be a very rich lady. Monsieur Loisel asked her to wait as he was calling a cab. तो बोलते हैं रुको मैं टैक्सी बुलाता हूँ। बट शी वॉज इन अ हरी एंड क्विकली वेंट डाउन द स्टेयर्स। तो वो रुकी नहीं, उसको वहाँ रुकना नहीं था, बाकी लेडीज़ को अपना चीप जो शॉल है वो दिखाना नहीं था, तो वो वहाँ से निकल गई, जाने लगी, कैब का भी वेट नहीं किया। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी नोटिस्ड। एज दे गॉट ऑन द स्ट्रीट दे वर लुकिंग फॉर अ कैरियज विच कुड टेक देम होम बट कुड नॉट फाइंड वन। अब इतनी सुबह वो एक कैरियज देख रहे थे जो उनको घर छोड़ सके, बट इतनी सुबह उनको कुछ नहीं मिला। Then they saw a coachman at a distance and started calling him. एक फिर भी दिखा, उसको आवाज़ देने लग गए, but the coachman did not stop. तो वो नहीं रुके। They kept walking together towards the river and finally found a carriage. तो चलते रहे रिवर की डायरेक्शन में और फाइनली एक कैरियज मिला। The kind one finds in Paris at dusk time. The carriage took them to their home and they both went up. घर गए। By then they were extremely tired. Naturally सुबह 4 बजे तक if you are up attending a party you are going to be
tired. The enthusiasm and fun for Madame Loisel had ended by then. तो तब तक जो एनर्जी थी, जो enthusiasm था पूरी पार्टी अटेंड करने का, पूरा जो अटेंशन मिल रहा था, वो सब अब कम हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. Monsieur Loisel also remembered that he had to reach his office by 10 in the morning. तो उसके हस्बैंड को ये भी याद आया कि कल मुझे ऑफिस 10 बजे तक पहुंचना भी है. As she stood in front of the mirror and removed the wrap, जैसे ही मिरर के सामने खड़ी होती है और वो शॉल निकालती है, to see herself one last time in the beautiful dress and necklace, तो बोलती है एक बार आखिरी बार खुद को देख लेती हूँ, और शॉल निकालती है. She cried, जोर से चिल्लाती है, because the necklace was missing. It was not on her neck. तो जैसे ही शॉल हटाया, she noticed कि जो इतना बड़ा डायमंड नेकलेस है वो उसके गले में अब नहीं है, गायब है. Monsieur Loisel was already half undressed by then, so he was already getting ready to go to bed and was almost ready to go to sleep when he asked her the reason for shouting. बोलते हैं कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? She turned towards him and said that Madame Forestier's necklace was missing and that it might have fallen somewhere. ये तो अब गुम गया है, कहीं गिर गया होगा. They searched it in the folds of the dresses. इतने ड्रेस के जो फोल्ड्स हैं उसमें देखा, ढूंढा कि कहीं अटक गया होगा. नहीं, उनके कोट में देखा, क्लोक में देखा, पॉकेट्स में देखा, बट कहीं भी नहीं मिला वो नेकलेस उनको. Monsieur Loisel then asked her if she remembered having it on while they were leaving the minister's house. ने पूछा जब हम वहां से निकले तब था तुम्हारे गले में? जनरली कोई चीज गुम जाती है तब हम ऐसे पूछते हैं कि कहीं यहाँ से निकले थे, वहां से निकले थे, तब तो था, राइट? सेम वे ही ऑल्सो आस्क्ड हर कि जब हम मिनिस्टर के घर से पार्टी से निकले तब था क्या वो तुम्हारे गले में? तो मैडम लॉजल said that she remembered having it on as she had felt it while leaving the house of the minister. उसने बोला कि हाँ, मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने वो पहना था वहां से निकलते समय. तो Monsieur Loisel, उसके हस्बैंड, said that if it would have fallen on the street, अगर रास्ते में गिर जाता चलते चलते तो आवाज आ जाती, they would have heard the sound, but they did not hear anything, कुछ भी सुनाई नहीं दिया. So which meant that it must have fallen in the cab. To this she replied that it could be possible that what he said was right, शायद तुम वो बोल रहे हो वो सही है. और उनसे पूछा कि तुमने नंबर नोट किया था क्या कैरियज का? तो ये नहीं किया था, दोनों ने भी नंबर नहीं देखा था. They were let down by what had just happened. जो भी हुआ उससे दोनों एकदम ही हताश हो गए थे, right? And sad and disappointed at the same time. And Monsieur Loisel dressed up again. जो बेड के लिए रेडी हो रहे थे जाने के लिए, वो फिर से कपड़े पहने, फिर से तैयार हुए. क्यों? To go and look, sorry, to go and look on the tracks where they were walking. She remained at home wearing her evening gown, whereas her husband went out in search of the necklace. तो वो घर पर ही थी और हस्बैंड बाहर वो नेकलेस ढूंढ रहे थे. मैडम Monsieur Loisel returned at around 7 in the morning. तो 4 बजे, रात भर वो सुबह तक ढूंढ रहे थे वो नेकलेस. एंड announced that he had not found anything. उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया. He also went to the police and cab offices and asking about it and gave an advertisement about it in the newspaper. तो उन्होंने एक एड भी दे दिया न्यूज़पेपर में उस नेकलेस के बारे में, offering a reward for whoever returned it, right? So उन्होंने एक रिवॉर्ड भी रखा कि जो भी ये वापस कर देगा उसको मैं रिवॉर्ड भी दूंगा, ऐसा एड भी दे दिया. तो मुझे बताओ, इतना बड़ा डायमंड नेकलेस और ये छोटे से वो अवार्ड के लिए वापस तो करने वाला था नहीं. Madame Loisel waited for her husband the whole day, and when he returned, he announced that he had not been able to find the necklace. पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उनको वो नेकलेस नहीं मिला. Monsieur Loisel told his wife to write to Madame Forestier that they had given the necklace for repairing as the hook of the necklace had broken. उसके हस्बैंड बोलते हैं मथिल्डे को कि तुम अपनी फ्रेंड से जिसका वो नेकलेस है उसको एक लेटर लिखो
और उसको बोलो कि इसका जो क्लास्प है, राइट, हुक जो है ये टूट गया है और उसको रिपेयर के लिए हमने भेजा है। आफ्टर लुकिंग फॉर इट फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, तो उन्होंने एक वीक तक वैसा ही एक नेकलेस ढूंढा। दे डिसाइडेड टू बाय अनदर नेकलेस, तो उन्होंने वो ढूंढा सब जगह और फिर डिसाइड किया कि अब ऐसा ही एक नेकलेस हम खरीद लेते हैं मैडम फोएस्टियर के लिए, एज दे वर नॉट एबल टू फाइंड द ओरिजिनल वन। Then they started looking for a necklace similar to the one they had lost and found one in a shop. एक उनको शॉप में वो वैसा ही नेकलेस मिल गया। The price for the necklace was 36,000 francs with a discount of 4,000 francs. Monsieur Loisel had about 18,000 francs which were given to him by his father before his death. सो 18,000 फ्रॉन्क्स थे उनके पास अपने फादर से इनहेरिट किए हुए, राइट। ही बोरोड द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम डिफरेंट मनी लेंडर्स, बचे हुए पैसे उन्होंने बाकी मनी लेंडर्स से उधार लिए। ही देन बॉट द न्यू नेकलेस फ्रॉम द शॉप बाय पेइंग द फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट उन्होंने भर दिया और वो नेकलेस खरीद लिया। When Madame Loisel took the necklace to her friend, अब खरीद के वो अपने फ्रेंड को वापस लौटाने गई, her friend told her that she should have returned it earlier as she too needed it. उसने बोला कि ये यार जल्दी लाना चाहिए था, मुझे भी ज़रूरत पड़ती थी, राइट। उसकी फ्रेंड ने वो बॉक्स खोला भी नहीं और चेक भी नहीं किया। मैडम लॉजिल, मटिल्डे लॉजिल को लगा कि ये बॉक्स खोलेगी और नेकलेस जो है ये चेक करेगी, बट मैडम फोएस्टियर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैडम लॉजिल वॉज वरिड अबाउट वॉट वुड हैपन इफ अ फ्रेंड केम टू नो अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेकलेस, तो थोड़ी सी डरी हुई थी कि कहीं उसको पता ना चल जाए कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये दूसरा है। She could blame her to be a thief, वो ये भी बोल सकती है कि मेरा वाला तुमने चुरा लिया और दूसरा यहाँ रख दिया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर उसको पता चल गया कि ये उसका नहीं है। मैडम लॉजिल रियलाइज्ड हाउ हॉरिबल लाइफ कुड बिकम, तो जिंदगी कैसी हो जाएगी इसके बाद में। She knew that they would have to pay the loan that they had taken for the necklace at any cost. So they started to reduce their expenses and save more. जो बचे हुए पैसे थे 18,000 छोड़ के जो बचे हुए पैसे थे वो उन्होंने लोन्स लिए थे बाकी मनी लेंडर से। तो मटिल्डे को ये पता था कि अब ये लोन जो है अब ये हमें रीपे करना है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल जो है ये चेंज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने जो खर्चे हैं वो कम करना चालू कर दिया और अपनी सेविंग्स जो है वो बढ़ाना चालू कर दिया। दे रिमूव्ड द मेड फ्रॉम हर जॉब, जॉब से जो उनके यहाँ मेड काम कर रही थी उसको हटा दिया, राइट, खुद काम करेगी अब मटिल्डे, सो शी विल सेव द सैलरी ऑफ द मेड। दे चेंज्ड देयर हाउस एंड रेंटेड रूम्स ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, घर भी बदल दिया, एक चीप घर ले लिया। और नाउ शी हैड टू लर्न द टायरिंग एंड बोरिंग वर्क ऑफ किचन लाइक वॉशिंग डिशेस एंड कुकिंग फूड, जो ये पहले नहीं करती थी, उनकी मेड करती थी, अब ये काम मटिल्डे करने वाली है। शी वुड वॉश क्लोथ्स एंड हैंग देम ऑन द लाइन टू ड्राई, ये सब भी खुद ही कर रही है, कपड़े भी धो रही है और कपड़े सुखाने भी डाल रही है। शी यूज टू गो डाउन टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग टू गेट वाटर, तो अब पानी भर के भी उसको लाना पड़ रहा है, वो जिस जगह रह रहे थे वहाँ में भी देयर वाज नो प्रॉपर वाटर सप्लाई, राइट, बिकॉज दे मूव टू अ चीपर होम। With the little money that she had, she used to dress like ordinary people, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उसमें वो नॉर्मल लोगों की तरह रहने लगी, पहले जैसे नहीं कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए वैसी ड्रेस चाहिए, नो, she used to dress like ordinary people and go to the grocery shop, the butcher's shop and the fruit shop with a basket to buy the things of daily use. So खुद से अब जा रही है अपनी बास्केट लेके, कुछ खरीदती है और वापस ऊपर लेकर भी आती है। The husband was also in a miserable condition, अब ये इतना कर रही है, husband कैसी condition है, he was also in a miserable condition as he used to work extra time in the evenings to get more money and often did copying work at night for a small amount of 5 sous a page, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी कर रहा था। 10 साल तक
they lived this life. They did this for 10 years and paid back their debt within this period. 10 साल तक ये पूरी लाइफ चेंज हो गई, उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं दोनों, खर्चे कम है, एक और भी बदतर घर में चले गए हैं। ये सारी लाइफस्टाइल जो है ये 10 साल तक इन्होंने रही। ठीक है। बाय दिस टाइम मैडम लॉजल had become a hard working woman of the poor household। जैसे एक गरीब घर की एक मेहनती औरत रहती है जो इतनी मेहनत करती है दिन रात, मटिल्डे लॉजल जो थी वो भी वैसी ही बन गई थी। बट फाइनली 10 साल में उनका जो लोन है वो कंप्लीट हो गया था, वो पूरा रीपे हो चुका था। She had started looking old. When you work so much, when you don't take rest, when you have so much stress, naturally it shows on your face and your body. She had started looking old with her hair badly kept, maintain नहीं कर रही थी खुद को, right? Hands red, and she used to speak in a loud voice. So पूरा ही she had become like a poor woman. Their class had totally changed. Many times to feel good when her husband used to go to work, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, she would sit next to the window and think about the party at the minister's house। तो तब खिड़की में बैठती थी जब हस्बैंड नहीं रहता था और इमेजिन करती थी, सेम याद करती थी वही पार्टी जहाँ से ये सब कुछ हुआ। She used to feel good about how beautiful and elegant she looked that day, कि उस दिन वो कितनी सुंदर, कितनी एलिगेंट लग रही थी, कितने लोग उसकी वहाँ तारीफ कर रहे थे, कैसे वो सेंटर ऑफ अटेंशन थी। She would imagine about how her life would be if she would not have lost the necklace। अगर वो नेकलेस नहीं खोती तो कैसी होती लाइफ ना। She used to think about how unpredictable life could be and how a small step could change a person's life। कि इतनी छोटी सी बात कि एक नेकलेस छूट गया या घूम गया, उससे लाइफ पूरी बदल गई। ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, तो लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। वन डे शी वॉज रिलीविंग हर सेल्फ ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द वीक। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए शी वेंट आउट एंड शी वॉज एंजॉइंग अ वॉक अलॉन्ग द शैम्स व्हेन शी सडनली सॉ अ लेडी वॉकिंग विद अ चाइल्ड। उसने एक लेडी देखी जो एक बच्चे के साथ वॉक कर रही थी वहीं पर जहाँ ये वॉक कर रही थी। द यंग प्रिटी एंड अट्रैक्टिव लेडी। अब देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि मटिल्डे लॉजल वो ओल्ड दिखने लग गई थी, बट यहाँ उसकी फ्रेंड उसको मिली है मैडम फोएस्टियर। शी स्टिल इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज यंग एंड प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। Madame Loisel started thinking about whether she should talk to her or not. She decided that as she had given her the necklace back and paid back all the debts, तो पहले सोचने लगी यार बात करूं या नहीं करूं, पर फिर सोचा अब मैंने नेकलेस भी वापस दे दिया, मैंने पूरी उधारियां भी चुका दी हैं, अब क्या नुकसान हो सकता है, अब इसको बता दिया जाए। अब कोई कारण नहीं है कि इसको हम नहीं बता सकते, बिकॉज दैट गिल्ट वाज स्टिल ईटिंग हर, राइट। देयर वाज नो रीजन फॉर हर नॉट टू टॉक टू हर। Madame Loisel went to her and said, "Good morning, Jean." Madame Forestier was confused as she could not recognize the person, but thought that she was familiar because only her close friends used to call her by that name। तो उसने पहचाना तो नहीं, लेकिन उसको ये पता था कोई फेमिलियर तो ज़रूर है, क्योंकि ये नाम से सिर्फ जो मेरे क्लोज सर्कल में जो लोग हैं वही मुझे बुलाते हैं। She told her that she might have got the wrong person। उसको लगा कि कोई किसी गलत इंसान से बात कर रही है, and that she might be looking for someone else। उसी नाम से किसी और को ढूंढ रहे होंगे। But Madame Loisel introduced herself to her old friend। उसने बोला कि मैं Mathilde Loisel, your friend। और Miss Madame Forestier was shocked to see her in such a poor and changed look। कि इतना कैसे तुम थक गई, इतनी कैसे गरीबी में रह रही हो, राइट। शी देन रिप्लाइड दैट शी डिड हैव सम हार्ड डेज, की लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई थी जब हम पिछली बार मिले तब से, और अब ये 10 साल में देयर हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट डेज दैट वी हैव स्पेंट। शी सेड दैट लाइफ हैड बीन मिजरेबल एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मैडम फोएस्टियर। उसने बोला कि ये जो भी हमारी कंडीशन है ये सब तुम्हारी वजह से है। मैडम फोएस्टियर को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ।
She asked how was she responsible for her bad days. तो Matilda replied that she had lost Forestier's necklace, कि मैंने तुम्हारा नेकलेस जो था वो खो दिया था. मैडम फॉरेस्टियर बोलती हैं कि that was not possible because she had returned it to her, कि ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम कि तुमने घुमा दिया था, तुमने तो मुझे वापस कर दिया था. Matilda replied that she had bought a similar necklace, मैंने वैसा ही दूसरा नेकलेस खरीदा, and they had been paying the debt for the last 10 years. मैंने वैसा ही दूसरा नेकलेस खरीदा और उसका लोन मैं गए 10 साल से चुका रही हूँ and leading a miserable life. She also said that they were not that rich to afford such an expensive necklace. ये हम afford नहीं कर सकते थे. Matilda added that their debt was now over, लेकिन अब जो है मेरा लोन जो है ये पूरा ख़त्म हो चुका है, मैंने पूरा वापस पे कर दिया है, and that she was satisfied with whatever she had. So finally इतने साल झटके खाने के बाद she was feeling satisfied with whatever she had. पहले कैसा था, जो भी था उसके साथ वो कंप्लेन करती थी, इरिटेट हो जाती थी, जो भी कंडीशन थी उसको हमेशा कुछ अच्छा चाहिए होता था. वो बोलती थी कि मुझे इससे बेटर मैं डिज़र्व करती हूँ, बट इतने झटके खाने के बाद अब शी सेज कि नहीं, मेरे पास जो भी है आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. सो देयर इज अ चेंज ऑफ थॉट हियर. Madame Forestier was surprised and asked Mathilde if she bought a diamond necklace just to replace her lost necklace. तो वो बोलती है कि तूने डायमंड नेकलेस खरीदा मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए. तो मथिल्डे कहती है हाँ बिल्कुल. Madame Forestier was touched. While holding her in her arms, she felt very touched. बहुत ही इमोशनल हो गई मैडम फॉरेस्टियर. उसको उसके हाथ पकड़े मथिल्डे के, and she said that the necklace which she borrowed from Madame Forestier was a fake necklace. उसने बताया कि जो नेकलेस तुमने मुझसे लिया था वो एक फेक था. They were not real diamonds and that it was not worth more than 500 francs. So ये जो तुमने मुझसे नेकलेस लिया था वो फेक था. दे वर नॉट रियल डायमंड्स और उसकी कीमत 500 फ्रॉन्क्स से ज़्यादा नहीं थी. एंड दीज पीपल थिंकिंग दैट इट वाज अ रियल डायमंड नेकलेस उसको रिप्लेस करने के लिए 10 साल तक अपनी लाइफ जो है पूरी की पूरी खराब कर दी. राइट. Let us come to the question and answers. I hope everybody has understood the chapter. Fine. Let us quickly move on to the question answers. What kind of a person is Madame Loisel? Why is she always unhappy? Madame Loisel is a very unhappy and unsatisfied person. She is not happy with her married life, her house, for that matter, anything in her life. She always keeps on dreaming about how her life would have been if she were born in a rich house, married in a rich house, and had lots of money to buy things. She's a greedy woman and always keeps on thinking of having more and more things. What kind of a person is her husband? Her husband is a very caring and a loving man. He is not greedy as he stays happy with whatever he has. He appreciates the little things that life has given him and does not want to see his wife unhappy, for which he sacrifices his own needs. The gun, right? What fresh problem now disturbs Madame Loisel? Madame Loisel's husband agrees to buy her a dress worth 400 francs and sacrifices his own requirement of buying a gun. But Madame Loisel, being a greedy woman, starts acting strangely and demands jewelry to wear, or else she will not go to the party. How is this problem solved? When she does not agree to wear flowers to the party, her husband suggests her to approach her friend Madame Forestier, who is a rich lady and would lend her jewelry to wear at the party. What do Monsieur and Madame Loisel do next? They make a lot of efforts after they realize that they have lost the necklace. They try to remember the cab number. Monsieur Loisel goes to the tracks where she could have dropped it, reports at the police station and cab offices. He also give an advertisement with an award, right, with a reward, but nothing works. They finally decide to replace the necklace by buying a necklace similar to the one they've lost. How do they replace it? So they had 18,000 francs
and they borrow the rest of the money, and they borrow it from the lenders and pay for the necklace in full. So this is where we end the chapter, the necklace. I hope everybody has enjoyed listening to the story. I will again say that you follow this profile. The link is in the description on Unacademy special classes on the Unacademy app and website, and you will get notifications about my sessions. I am there at 11:30 a.m. every day. Let us meet and have fun with quizzes. And please tell us how you feel about this in the comments. Join the Telegram group Quest 10th CBSE, and don't forget to use the S Live code when you go in for your Plus subscription. See you next time. Bye bye.